آپ تمام پڑھنے والوں کو سننے والوں کو خداوند یسوع المسیح کے نام میں میرا سلام پہنچے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں قادر مطلق خدا کا زندہ کلام آپ تک پہنچا سکوں۔ خداوند کے کلام میں ایسے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے جن کے متعلق جاننے کے بعد ہمارے ایمان کا معیار بلند ہو جاتا ہے اور خداوند کا جلال چھانے لگتا ہے۔ جہاں خداوند کا جلال ہوگا وہاں معجزات ضرور ہی ظہور میں آئیں گے، زندگیاں ضرور ہی بدلیں گی اور ایمانداروں کا شمار زیادہ ہوتا جائے گا اور خداوند کی کلیسیا روح القدس کے زور سے زور آور ہو جائے گی۔ خداوند کے بڑے بڑے عظیم کاموں کا تعلق خداوند کی قدرت کے ساتھ ہے اور وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنی موجودگی کا ثبوت دیتا ہے۔ جہاں خداوند موجود ہوگا وہاں جلالی کام ہونے لگتے ہیں کہ دنیا زندہ خدا کے بیٹے پر ایمان لے آئے کہ یہی حقیقی نجات دہندہ ہے۔ میرا ایمان ہے کلام کی ان باتوں کو پڑھتے وقت سنتے وقت روح القدس کی قوت آپ کو گہرے طور سے چھوئے گی اور آپ کی سوچ، زندگی کا انداز، آپ کی گفتگو بدل جائے گی اور آپ کے ایمان کا معیار بڑھ جائے گا۔ آج خداوند کی حضوری میں خداوند کی آواز کے تعلق سے چند روحانی باتیں، ایمان کو معمور کرنے والی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند کی آواز میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے جو آسمانی برکات سے ہماری زندگی کو برکتوں اور جلالی کاموں سے معمور کر دیتی ہے اور ہماری روح خداوند کی روح کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے اور اس وقت خداوند کی آسمانی مرضی زمین پر ان لوگوں کی زندگیوں میں پوری ہوتی ہے جو اس کی قدرت پر ایمان لاتے ہیں۔ انجیل کی منادی ہماری نہیں بلکہ خداوند کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کا نام ہے۔ جب ہم خداوند کی آواز کو سنانا شروع کرتے ہیں تو دروازے کھلنے لگتے ہیں اور راہیں ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مضبوط ایماندار کی پہچان اس بات سے نظر آتی ہے کہ وہ خداوند کی آواز کی تابعداری کرنے والا ہو۔ جو خداوند کی آواز کی تابعداری نہیں کرتے ان کی روحانیت کا جہاز ڈوب جاتا ہے۔ جب خداوند ہمیں پکارے تو ہم ہمیشہ یہ کہہ کر اس کو جواب دیں کہ میں حاضر ہوں، تاکہ ہم خداوند کے حضور سے غیر حاضر نہ ہوں اور ہمیشہ اس کی آواز کو سننے کے لیے تیار رہیں۔ وہ تمام ایسے لوگ جنہوں نے خداوند کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی ہیں، یہ صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے اندر خداوند کی آواز کو زندہ رکھا اور زندگی کا تاج حاصل کیا۔ خداوند کی آواز میں گہرے بھید پائے جاتے ہیں اور جو اس کی آواز کو سنتا ہے خداوند اپنے بھید صرف اس پر کھولتا ہے تاکہ خداوند کی آواز کی تابعداری کرنے والے کلام مقدس کے بھیدوں اور کل علم سے واقفیت حاصل کریں۔ خداوند کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، یہی اس کی آواز کی خوبصورتی ہے جو بدصورتی کو دور کر دیتی ہے۔ خداوند کی آواز میں ایسی گرج پائی جاتی ہے کہ گنہگار کانپ اٹھتا ہے اور خود کو خداوند کے آگے جھکا دیتا ہے۔ خداوند کی آواز دنیا کی بادشاہیوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور دنیا کے بادشاہ زندہ خدا کے آگے جھک جاتے ہیں۔ خداوند کی آواز سن کر دشمن بھاگ جاتا ہے اور اپنی شکست قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ خداوند کی آواز میں زور اور قدرت ہے۔ خداوند کی آواز ہماری زندگی کے بیابان کو ہلا دیتی ہے اور بیابان خوشحالی میں
بدل जाता है। खुदावंद की आवाज बंजर जमीन को सैराब कर देती है। खुदावंद की आवाज मौत की वादियों में भी हमारा साथ देती है। खुदावंद की आवाज से हमारी जिंदगी और हमारी खिदमत में तरतीब आ जाती है। खुदावंद की आवाज जोर के पानियों की सी है, जिसके आगे तूफानों का जोर भी टूट जाता है। खुदावंद की आवाज हमारी जरूरत है ताकि हम अपनी रूहानियत में जिंदा रहें और अपनी पाकीज़गी को कायम रख सकें। खुदावंद की आवाज हमारी जरूरत है ताकि हम रूहानियत में जिंदा रहें, अपनी पाकीज़गी को कायम रख सकें, अपनी बुलाहट को महफूज रख सकें, इंजील सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहें, खुदावंद के नाम से बदरूहों को निकाल सकें, बीमारों को अच्छा कर सकें और एक दूसरे को रूहानी तौर पर मजबूत कर सकें। खुदावंद की आवाज में मोहब्बत पाई जाती है। जो भी इस आवाज को सुन लेता वो हर तरह की सख्त दिली से आजाद हो जाता है। खुदावंद की आवाज में मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत पाई जाती है और जब वो हुक्म देता है मुर्दा जिंदगियां जिंदा हो जाती हैं और उनका दम, उनकी जिंदगी उनमें वापस आ जाती है। खुदावंद की आवाज में इख्तियार पाया जाता है। जब वो बोलता है तो तेज हवा भी उसका हुक्म मानकर थम जाती है। खुदावंद की आवाज से बदरूहें चीखती और चिल्लाती हैं और बदरूह गिरफ्ता लोग आजाद हो जाते हैं। खुदावंद की आवाज से इब्लीस डरता है और उसकी हर तरह की मंसूबाबंदी जो खुदावंद के लोगों के खिलाफ है उसका जोर टूट जाता है। बीमारियों का जोर टूटता है, तूफान थम जाते हैं, नाउमीदी उम्मीद में बदल जाती है, मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं, गुनाहों से तौबा करने का फैसला जन्म लेता है, पीतल के आसमान का जोर टूटता है और हर तरह की लानत जिंदगियों से जाना शुरू हो जाती है और आसमानी बरकत का दरवाजा खुल जाता है। हमारी जिंदगी में हर रोज बहुत सी आवाजें हमारे जहनों में गूंजती रहती हैं। ऐसी आवाजें जिनमें रोना, चिल्लाना, नाउमीदी, बीमारी, मौत और दुख भरी आवाजें हैं, हर वक्त हमारा पीछा करती रहती हैं। हमारे माजी के तल्ख और खौफनाक वाकयात एक खौफनाक आवाज की सूरत में हमारा पीछा करते रहते हैं, जो हमें हमारे माजी से आजाद नहीं होने देते। लेकिन ऐसी हालत में सिर्फ खुदावंद की आवाज ही हमारे हालात को बदल सकती है और हमारी जिंदगी के अंधेरे को उजाला कर सकती है। खुदावंद की आवाज ही एक ऐसी आवाज है जिसमें भरोसा, उम्मीद, तसल्ली, मोहब्बत, सब्र, शादमानी, आगे बढ़ने की सलाहियत, बुलंदियों को छूने का जज्बा, पानियों पर चलने वाला ईमान, इब्लीस पर गालिब आने वाला इख्तियार, नया इंसान बनने का आगाज और हमेशा की जिंदगी का मुकाशफा पाया जाता है। खुदावंद की आवाज ना सिर्फ दुखों को दूर करती है बल्कि हमारी जिंदगी का हर लम्हा रूहुल कुद्स की मामूरी से मामूर हो जाता है। सिर्फ कमी इस बात की है कि हम खुदावंद की आवाज को मौका नहीं देते कि हमारी जिंदगी में पूरे तौर से काम कर सके, बल्कि कई मर्तबा हम इब्लीस की आवाज और खुदावंद की आवाज में फर्क मालूम नहीं कर पाते और कई तरह के गलत फैसले कर लेते हैं, जिसका नतीजा सिर्फ आंसू होते हैं और हर वक्त खुद को कोसते रहते हैं कि काश मैं खुदावंद की आवाज को समझ जाता, काश मैं खुदावंद की आवाज को समझ जाती, काश मेरी जिंदगी खुदावंद के कदमों में गुजरती, काश मैं रूह से मामूर कलीसिया का हिस्सा होता,
काश मेरा भी कोई रूहानी बाप होता जो मेरी रहनुमाई कर पाता। काश मैं बाकायदगी से कलाम मुकद्दस को पढ़ने वाला होता। अब भी वक्त है कि हम अपना रुख बदल लें और उन तमाम तूफानों को रोक सकें जो फिर से हमारी जिंदगी में उठने वाले हैं। जरूरी है कि हम खुदावंद के हुजूर झुकें और अपनी हर मर्जी में उसे शामिल करें, ताकि इब्लीस का कोई भी हमला हम पर दोबारा ना चल सके और खुदावंद का जलाल हम पर छाया रहे। जब हम खुदावंद के हुजूर से दूर हो जाते हैं तो खुदावंद का जलाल भी हमारी जिंदगी से उठ जाता है और हम जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। रूहानी मुर्दगी भी हमारी जिंदगी की पहचान और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। हर तरह का गुनाह हमें खुदावंद के जलाल से महरूम कर देता है, लेकिन कलाम और दुआ में मशगूल रहने और अपनी जिंदगियों से खुदावंद का जलाल जाहिर करें। हर तरह का गुनाह हमें खुदावंद के जलाल से महरूम कर देता है, लेकिन कलाम और दुआ में मशगूल रहें और अपनी जिंदगियों से खुदावंद का जलाल जाहिर करें और सच्चे मसीह के सच्चे गवाह बन जाएं। हमें अपनी जिंदगी में कुछ रूहानी असूल सीखने हैं। कलाम मुकद्दस से हम ये सीखते हैं कि खुदावंद ने अपने लोगों को खास काम के लिए चुन रखा है, ताकि वो खुदा की तरफ से होकर बोलें और खुद को पाक करके खुदावंद के हुजूर हाजिर हों और अपनी जिंदगियों से और अपने कामों से लश्करों के खुदा की इस तरह से तमजीद करें कि दुनिया जान ले कि हमारे खुदा के सिवा और कोई दूसरा खुदा नहीं है, जो जलाली कुव्वत से भरपूर हालात और जिंदगियों को बदल देने वाले काम अपनी आसमानी कुदरत के वसीला करता है। खुदावंद अपनी आसमानी मर्जी को जमीन पर उन लोगों की जिंदगी में जाहिर करता है जिनकी आंखें आसमान की तरफ लगी रहती हैं। जिन लोगों की जिंदगी में खुदा का खौफ नहीं होता, ऐसे लोग कभी भी गुनाह से आजाद नहीं हो पाते, जबकि खुदावंद का खौफ हमें खुदावंद के करीब लेकर आता है और हम हर तरह के गुनाह से छुटकारा हासिल करते हैं। जब भी इंसान ने गुनाह किया उसी वक्त वह मुश्किलात का भी शिकार हुआ, लेकिन गुनाहों से सच्ची तौबा करने के नतीजा में रूहुल कुद्स की जुम्बश होने लगती है और आसमानी बरकतों और रहम से भरा खुदा जिंदगी में उतर आता है, ताकि हम नजात हासिल करके रास्तबाजी का लिबास पहन लें और फिर हम मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा दिखाई देने लगते हैं। हमारी सीरत बदल जाने के नतीजा में हमारी सूरत भी खुदावंद के जलाल के वसीला रोशन हो जाती है। अगर हम ये रूहानी असूल सीख जाएं तो मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, हमारा खुदावंद कभी भी हमें गिरने नहीं देगा और हमारी जिंदगी के तमाम जुए अपनी कुदरत के वसीला तोड़ डालेगा। रोना खुशी में बदल जाएगा, हमारे आंसुओं को वो पोंछ लेगा, बीमारी शिफा में बदल जाएगी, अंधेरे में नूर चमकेगा, बंजर जमीन फलदार हो जाएगी, लानत बरकत में बदल जाएगी और यहां तक कि पुराना इंसान दफन हो जाएगा और यीशु मसीह के नाम से नया इंसान जी उठेगा। मेरे अजीजों, खुदावंद की आवाज को हमेशा सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखें। खुदावंद की आवाज की कदर करें, खुदावंद की आवाज पर ईमान ले आए। खुदावंद का कलाम खुदावंद की आवाज है। खुदावंद की आवाज से अपने आप को जुदा न करें, हमें नया इंसान बनकर जी उठना है। आप तमाम सुनने वालों को खुदावंद बड़ी बरकत दे। इस कलाम के हिस्सा को खुद भी सुने और औरों तक भी पहुंचाएं। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।